ایک تہوار ہے جسے ہم الیکشن کہتے ہیں. یہاں پر ہر دھرم کے لوگ اس تہوار کو منانے کے لیے آج پورے دلی کے اندر ماحول گرم کیے ہوئے ہیں. لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ آج کہیں پہ کھانا بن رہا ہے, کہیں پہ کپڑے دیے جا رہے ہیں, اور دینے والا نیتا اگر ہو تو تکلیف ہوتی ہے. ارے جب ہم دیوالی اپنے پیسوں کی منائیں, عید اپنے پیسوں کی منائیں, تو چناؤ کے اندر بھاگیداری اپنی مرضی سے کیوں نہ لے بھائی؟ چناؤ ہمارا ہے, تہوار ہمارا ہے, مستقبل ہمارا ہے, تو فیصلہ کس کا؟ ارے فیصلہ ہمارا ہونا چاہیے. فخر ہے مجھے ہندوستان کی عوام پہ, فخر ہے مجھے دلی کی عوام پہ, جنہوں نے دیش کی راجنیتی کو بدلا, جنہوں نے کیجریوال کو سڑک سے اٹھا کر ایوان میں بٹھایا, اور اس اروند کیجریوال نے 10 سال کے اندر سکولوں کا نقشہ بدل دیا. بہت بڑھیا میرا بھائی, بہت بڑھیا. اچھا لگتا ہے ہمیں جب دلی کے علاقوں میں آتے ہیں تو بجلی کی کٹوتی نہیں دیکھتے ہیں. جب 2014 سے پہلے دلی کی گلیوں میں آتے تھے, لوگوں سے پتہ کرتے تھے, تو لوگ بتاتے تھے کہ گھنٹوں کٹوتی ہوتی ہے, ہوتی تھی. ارے بچوں کو تھوڑا خاموش کرا لو, بچے لوگ اگر خاموش رہیں گے اچھا لگے گا. اب اگر لوگ آئے ہیں تو وقت اتنا ضائع تو آپ کے پاس ہے نہیں. ہر انسان کا وقت قیمتی ہے, ہمارے لیے تو ہر لمحہ قیمتی ہے. اور ایک بات بتا دوں, ہم اپنے مفاد کے لیے کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میری بات یاد رکھنا اور ہمارے کردار کے بارے میں پتا کر لینا. خوش قسمت ہے دلی کی عوام کہ اروند کیجریوال نے دلی کی عوام کا بیڑا اٹھایا ہے. وہ بتا رہا ہے میں کہ آپ کے بچوں کے اسکول کو بہتر کروں گا, اور کر دیا. اس نے کہا کہ بجلی میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. دلی کے اندر پچھلے 10 سال سے کٹوتی نہیں ہوئی, اور 200 یونٹ فری بھی ہے. ارے کس کس کا بجلی کا بل زیرو ہے؟ آنا میرے جموں کشمیر میں پہاڑوں سے ندیاں بہتی ہیں, دریا بہتے ہیں, پہاڑوں کے پہاڑ کھود دیے ہیں, پاور پروجیکٹ ہیں, ہزاروں میگا واٹ کی بجلی بناتے ہیں. گھنٹوں ہمارے یہاں روشنی نہیں ہوتی ہے, گھنٹوں نہیں ہوتی ہے. ارے کیجریوال نے آپ کا بیڑا اٹھایا. آپ کے گھروں میں اگر بجلی ہے تو خوش قسمت لوگ ہو, خوش قسمت ہو. پتہ کر لو, بغل میں یو پی ہے, بغل میں ہریانہ ہے, اس کے پار جب کرو گے تو جموں کشمیر آتا ہے. میرے جموں کشمیر میں بجلی کے پاور پروجیکٹ ہے, لیکن بجلی سے محروم مجھے رکھا. میں نے لوگوں کو بتایا کہ بجلی کو بہتر کریں گے, تو لوگوں نے ووٹ دیا, مجھے موقع دیا. میں وہاں کا کاؤنسلر رہا. 2020-21 میں جب چناؤ ہوئے, سنا تھا آپ نے, وہ جو ڈی ڈی سی کے چناؤ ہوئے اس میں ہم نے حصہ لیا. پارٹی کو کہا ہم چناؤ لڑیں گے, پارٹی نے منع کیا, ہم چناؤ میں کود گئے. نردلیہ جیت کر آئے, انڈیپینڈنٹ جیت کر آیا. 4 سال اقتدار میں رہا. 280 ڈی ڈی سی تھے. کتنے؟ 280 ڈی ڈی سی وہاں جموں کشمیر میں بنے. ان میں اکیلا معراج ہٹکے تھا. 4 سال میں نے جنتا کا کام کیا, عوام کی بہتری کے لیے کام کیا, سکولوں کو بہتر بنانے کی خواہش کی, اس پر کام کیا. بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے 350 ٹرانسفارمرز میں نے لگائے. کتنے؟ 350. اور یہ مداری کا کھیل ان گلیوں میں نہیں ہو رہا ہے. جو دور پیچھے بیٹھے ہیں, تمہارے بچوں کا مستقبل ہے, تمہارا خود کا مستقبل ہے. چلے آؤ, سیاست کو دھرم سے مت تولنا. دھرم
की रक्षा हर वो धार्मिक करेगा जो धर्म का पालन करता है। तुम किसी के खुदा को बचाने की कोशिश मत करना। सियासत को सियासत की नजर से देखना। बगल में अगर दुकान जूते की है तो खाना खाने की नियत से मत जाना, क्योंकि आपको उस दुकान में खाना नहीं जूता मिलेगा नहीं। और सियासतदान को धर्म से दूर रखोगे तो बेहतर होगा। मैं सुन रहा था हिंदुओं के भी लीडर आ रहे हैं, मुसलमानों के भी आ रहे हैं। देश के अंदर यही चल रहा है। याद करो 1947 से पहले देख लो, दिल्ली के अंदर दिल्ली का वो जो गेट है, इंडिया गेट, नामे लिखे हैं वहां पे। क्या लिखा है? किसके? अरे उन शहीदों के जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी लाई थी, जिनका सपना था, और आज उनके सपने को रौंदने का काम हिंदू भी कर रहा है और मुसलमान भी कर रहा है। और आप सियासत को धर्म से तोलोगे। कुछ लोग देख रहा हूं खुद का बड़ा लीडर कहते हैं, अरे उन पूर्वजों को देखो जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और इंडिया गेट पे वो नाम देख लेना, वहां भेदभाव नहीं है। तुम धर्म की राजनीति यहां पर क्यों करते हो? क्या आपको सुकून बेहतर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे दंगे धर्म वो इलेक्शन में होता है। 5 साल आप भी उम्मीद करते हैं दंगे खत्म हो जाते, हमारा काम कर लेता कोई। ये चाहते हो? कौन चाहता है कि अपने दिल्ली के अंदर रोज दंगे होते रहे? चाहते हो? अभी तो चुनावी माहौल है, सरगर्म है, उसने उसको गाली दी, इसने इसको गाली दी, बस मजे ले रहे हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे जो लीडर का काम है उससे वो काम पूछो। केजरीवाल ने कहा था बिजली दूंगा, दी? अगर दी तो वोट देना, अगर मुफ्त थी तो खड़े रहना। अगर स्कूल बेहतर बने, तुम्हारे बच्चों की तालीम का वादा किया था उसे पूरा किया। अगर हेल्थ के निजाम को बेहतर करने का वादा किया था, अगर उसे पूरा किया, तो आप एक लीडर से क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? अरे जिसको बनाने की ख्वाहिश करोगे जज्बात से राजनीति नहीं चलती है। अगर आपके घर का बड़ा भी जज्बाती होगा, सुबह से लेकर शाम तक भाषण देगा, पैसा जेब में नहीं होगा, बच्चे सड़क पर नंगे चलेंगे, खाने के निवाले के लिए भीख मांगेंगे, तो वैसे लीडर को, वैसे माँ बाप को क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ये जो तुम्हें दिखा रहे हम मुसलमान हैं, वो ये होगा फिर वो होगा, कुछ नहीं होगा। सुन लो मेरी बात। ये चुनाव जो ये धर्म है ना, जैसे हमारे रमजान होता है, पूरा महीना जो अच्छे से नमाज पढ़ के, रोजा रख के, अल्लाह की इबादत करके, उसके बाद ही ईद का मजा आता नहीं। वरना जो रोजा ही नहीं रखे, ईद के दिन वो सूट बूट पहन कर जाए या बड़ी सी टोपी लगाकर ईद की नमाज में जाए, उसे खुद भी शर्म होगी नहीं होगी? होगी। ईद वही मनाएगा जिसने रोजा रखा होगा, और अच्छा भी उसे ही लगता है। और ये जो चुनाव के दिन है, ये इसलिए आपको मौका नहीं मिलता है कि गलियों में नेता आएंगे, कुछ लोग गाली देंगे और कुछ नेता किसी नेता के खिलाफ बोलेंगे। ये मेला इसलिए नहीं है। आपको क्या लगता है आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 27 तारीख है। कल 26 जनवरी था। क्या था? और मना रहे थे, लाल किले में ऊंचा झंडा चढ़ाया था। क्यों? अरे किस लिए? इसलिए कि आप लोगों की ताकत को आपका अंदाजा हो। इस देश के अंदर जो आईन बना, उस आईन में तुम्हें इख्तियार दिया, तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराया, और वो ताकत हमें नहीं भेजते हैं नहीं जज्बात में आकर।
अरे रिश्ता भी सोच समझ कर देते हैं, किसी का चेहरा देखकर अपनी लड़की का रिश्ता उसे नहीं देते। ये देखते हैं बच्चा कमाने वाला है कि नहीं, कैसे ही देते हैं, शराबी को उठा के अपनी लड़की का रिश्ता देते हैं। अरे 100 बार सोचते, उससे बढ़कर आपके वोट की कीमत है। आपने अपना 5 साल किसी को समर्पित करना है, अपना वजूद किसी को सौंप देना है। सुन लो, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आएगा 13 को आएगा, 8 को कब? 8 को आएगा। 5 तारीख को आपने वोट डालना है। डालना है नहीं डालना? ताना तय है, ताज किसके सर लगेगा वो लगना भी तय है। लेकिन एक मौका, एक बात जो आज ओखला की सरजमीन पे बताने आया हूं, गर्म पानी पिला दीजिए। ओखला की सरजमीन पे गला बैठ जाता है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि हम पहाड़ों से आते हैं ना, है ना। आपको मालूम होना चाहिए 5 तारीख जब आप लोग वोट डाल देंगे ना, 8 तारीख को आप में से बहुत सारे लोग पछताएंगे, यार उसको वोट दिया होता तो ये होता, इसको वोट दिया होता तो वो होता। मैं आज ये बताने आया हूं, आज आपको मौका है 5 तारीख से पहले समझने का, समझाने का कि हमने वोट किसको देना है और क्यों देना है। इसका मकसद आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है? समझोगे, समझाओगे। हरे गलियों में लोग बातें कर रहे होंगे, ये कौन लड़का है, कहां से आया है। मोदी का काल एक ही है, अरविंद केजरीवाल। याद रख लेना मेरी बात, याद रख लेना, वो वक्त आना तय है। पानी पिला दे। अरे गरम पिला लो, माहौल गरम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। क्या अमानतुल्लाह खान मुसलमान नहीं है? क्या यहाँ ये जो भीड़ बैठी है ये मुसलमान नहीं है? कश्मीर के हजारों लोग, हमारे मुल्क में दिल्ली के लोगों ने 1947 से पहले कुर्बानियां दी। कब इस देश के लिए। गर्म पानी पिला दो।